गोबर गौमूत्र के प्रोडक्ट्स के ऊपर है, उसके लिए बायोगैस चाहिए। और वो बायोगैस कितने एनिमल में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मेरा पेबैक कितना होगा, मुझे सिर्फ बायोगैस बनाना है या मुझे पावर जनरेशन करना है या मुझे सीएनजी बनाना है, ये एक्सपर्ट आज हमारे सामने खड़े हैं। मैं श्री कानेरे साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ये जो 12-15 राज्यों से आए वाले जो सम्माननीय सदस्य हैं, उनको ये सॉल्यूशन चाहिए। उनके पास के एनिमल्स कितना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कंप्लीटली, और उनका पेबैक कितने दिन में निकलेगा। ऑलरेडी अपने स्पाइरल में उनका लेक्चर है, उनसे वो बहुत बड़े बड़े गौशालाओं के प्रोजेक्ट चलाते हैं। 4-5 गाय से लेके 500 गाय तक उनके पास आपके पूरे सॉल्यूशंस है। आपका बायोगैस का भी सॉल्यूशन है उनके पास, पावर जनरेशन का भी है, सीएनजी जनरेशन का भी है। तो व्हाटएवर बिजनेस माइंड यू हैव, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट नीडेड, ही इज द राइट पर्सन इन इंडिया टू आंसर। सो आई रिक्वेस्ट कानेरे सर, प्लीज कम। स्पायरल मध्ये माझं एक छोटंसं 4 पानांचं लिटरेचर आहे. 8च स्लाइड मी करून आणले, इथे 5 स्लाइड केले नाही. आणि माझी स्लाइड स्टार्ट्स विथ लॉर्ड श्रीकृष्ण. सकाळी आपण इथे त्याच्याच त्याला प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रम सुरुवात केला. लॉर्ड श्रीकृष्णाला दुसऱ्या भागामध्ये गोवर्धन असंही म्हटलं जातं. ही इज द फर्स्ट हू हॅज स्टार्टेड कॅटल फार्मिंग इन द ग्लोब असं म्हणायला काही हरकत नाही. ओरिसामध्ये जर आपण गेलो किंवा बिहारमध्ये गेलो तर ते लोक गोवर्धन असं न म्हणता थोडं वेगळा उच्चार करतात आणि ते गोवर्धन असं म्हणतात. गोच्या जागी ब म्हणतात. आणि इथेच मला माझा पॉइंट सापडला. नाव अ पर्सन हू इज हॅव्हिंग हिज बिझनेस ऑफ कॅटल फार्मिंग कॅन बी कॉल्ड ॲज अ गोवर्धन. And a person who is doing a business of gobar and making dung out of that can be a person who can call the gobardhan. A biogas produced from the degradation of dung, cattle dung, is called as gobar gas. Now few people ask me across the globe that there is a difference in between gobar gas and biogas. But no, there is no difference in between gobar gas and biogas. The word gobar gas has come in front of is only because of in the initial stage when there was a huge penetration of gobar gas plant across the nation through central government. People started calling it the gas which has been produced by gobar. It's a gobar gas, and the plant was called as gobar gas plant. It's basically a biogas plant. A biodegradation of any biomass produces biogas. That's the simple definition of biogas. What a biogas means, in the simple form, there are 2 tanks which have been kept in between invertedly. The downside tank can be called as digester, where any biomass which has been fed into the biogas plant gets degraded or digested and hence called as digester. The upper part where the gas has been collected called gas holder. Now these are the 2 principal parts of the whole biogas plant called digester and biogas plant. Now there are 2 other factors or the parameters for the biogas plant. There is one pipe which is called as inlet pipe from which the gobar comes in. There is one other pipe from which the sludge comes out, which is called as outlet. Now these are the 4 parameters of a whole biogas plant: digester, gas holder, inlet, outlet. And on the upper part of the gas holder, it's a gas cock to control the flow of gas. That's all. Now this is biogas plant. So simple, so simple. When I was studying Rigveda, in Rigveda I find one very familiar phrase based on Lord Sri Krishna. It has been written like Tvadiya vastu govinda tubhyam eva samarpaye. Now the Govind is not meaning of Lord Sri Krishna. Govind is called as in form of nature. The nature has given us n number of things. We are consuming it, and after consuming still something remains which can be called as dirt or trash or waste. It has to be given back to nature in such a form where he can accept it. So this was the phrase regarding
Tvadiyostu Govinda Tubhyam Eva Samarpaya. The biogas plant is such mechanism from which the cow has kept something which is out of that, which is not used, it's not now useful for the cow or the buffalo. Now, if it has been filled into the biogas plant, the sludge will come out in the excellent form of nutrient as well as fertilizer. This is the only mechanism. Few people are talking about weedicide half an hour back. And we people also feed some fodder with the weeds to the cows and buffaloes. Now, there is no any system that the further weeds are still treated in the digestion chamber of any cow or any buffalo. So whenever the dung comes out, it's still full of the weeds. Biogas plant is the only mechanism available in the world in which all the weeds are treated properly, all the starch material has been degraded completely, and if you can use now the gobar as a fertilizer in your farm, there is no any harm that none of the weeds will come again. This is the only mechanism. I am not here to promote biogas because my biogas business is going on. I am here to help you, I am here to guide you, I am here to share my views with you. If you produce biogas out of your cattle farm, what you can add in, what will be the value addition? And for me, if you produce biogas, normally 1 meter cube of biogas, now this is a technical term in which 1 meter cube is 1000 liter of biogas. Now 1000 liter biogas, if I produce 1000 liter biogas, that means 1 meter cube of biogas, I have produced 0.46 kg of LPG, or else I have produced 1 kilowatt hour, that is 1 unit of electricity, or else I have produced 0.48 liter of diesel. How I am claiming this? If I produce biogas and I am using it for my cooking purpose, if I can compare the calorific value of LPG, that is butane, along with gobar gas, then one can mathematically solve the whole thing and come out with the answer, which is 0.43 kg of LPG. Or else, if I offer this biogas into any generator where the electricity is generated, for 1 HP engine, if I have to run for 1 hour, I need 1 meter cube of gas. For 1 HP engine, if I have to run it for 1 hour, I need 1 meter cube. And that is 1 unit. If I am using this biogas in the form of some compressed form, if I feed it into cylinder and I feed it with my 2-wheeler or my 4-wheeler or my tractor, I am going to save my petrol or my diesel. There was one person who was giving some lecture in the morning and telling us, I think Mr. Dambi, he was telling that there was a problem of the person who was carrying the milk from your farm to the city. पेट्रोल का भी खर्चा था, आपने बताया था, आप पेट्रोल का खर्चा बचा सकते हो, पूरा बचा सकते हो, वहाँ का लाइट का भी खर्चा बचा जा सकता है। ये आपको MSP लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। Now the availability of dung and how one can calculate his appropriate biogas plant can be on the basis of what is available with me or what else I want, what is my want. Now what the buffaloes and cows are offering me is, one cow offers me around 8 to 10 kgs of a dung a day. If few buffaloes are with me, those are offering 10 to 12 kgs of dung per day. If the cows are there, they are in the range of 6 to 8. Now 1 kg of dung, if I feed it into my biogas, when it comes out, it takes exactly 40 days, which is called as HRT, the hydraulic retention time, पूरा गोबर सड़ने के लिए की कालावधि, उसका टाइम। ये HRT होता है 40 दिन का। अब 40 दिन
ये स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ये महाराष्ट्र में हम लोग 40 दिन पकड़ते हैं। अब कोई मेरे भाई अगर राजस्थान से हो तो वो 50 दिन पकड़ सकते हैं। वो सड़ने के लिए कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। The whole load of this converting or degrading the cow dung into sludge has been borne by the bacteria. तो ये उसमें बैक्टीरिया भी होने चाहिए कि जो डंग के साथ अलोंग होते ही है, हमको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। तीसरी बात होती है कि वो जो बायोगैस प्लांट है उसकी पीएच, वो एसिडिक है, वो न्यूट्रल है, वो अल्कलाइन है। 0 से 14 की एक रेंज होती है। 0 से 7 जो होता है उसको बोलते हैं ये एसिडिक है। 7 से 14 जो होता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन है। और अगर एग्जैक्ट सेंटर पे है, 7 पे है, तो बोला जाता है कि वो न्यूट्रल है। बायोगैस प्लांट इज ऑलवेज एट न्यूट्रल। कल आप पीएच पेपर में उसमें डालो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो हरा रंग में एक थोड़ा सा उसका कलर स्ट्रिप में आ जाता है और हम लोग समझ सकते हैं कि मेरा बायोगैस प्लांट 7 पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसका मतलब उसको फीवर नहीं है, वो अच्छा चल रहा है। और 2 चीजें हैं उसमें, एक है कि HRT उसका कालावधि, वो सड़ने के लिए जो टाइम है वो टाइम। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज काउज में बहुत कम होते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा बुफेलोज में होते हैं, उससे और भी ज्यादा हॉर्सेस में होते हैं और उससे भी ज्यादा और एलिफेंट्स में होते हैं। तो हमने थोड़ा सा अभ्यास किया था कि ऐसा क्यों होता है। तब समझ आया कि जो जो उनका आहार है उसके ऊपर उनके डंग में कितना बैक्टीरिया आता है। हम लोग हॉर्स में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाते हैं क्योंकि हॉर्स सबसे ज्यादा स्टार्च ही खाता है और इतनी ताकत होती है उसमें कि वो ताकत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वही यूज करते हैं। हम लोग हॉर्स पावर ऐसा बोलते हैं, हम लोग बुल पावर नहीं बोलते, हम बफेलो पावर नहीं बोलते, हम काउ पावर नहीं बोलते, हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। क्यों हॉर्स पावर बोलते हैं? कि इतना तेजी का खाना खाता है, उसकी ताकत उस हिसाब से होती है। तो स्टार्च के ऊपर ये बैक्टीरिया बहुत सारा निर्भर होता है। और यहाँ पे एक और चीज आपको सुनाओ। मैंने एक बार किसी से पूछा था कि भैया आप दूध बना सकते हो क्या? इट्स वेरी सिंपल। तो बोला कैसे बना सकते हो? तो बोला बाजार से मिल्क पाउडर लेके आओ, पानी में घुल मिल लो, दूध तैयार। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर ही हैज गिवन मी, बट दैट मिल्क पाउडर हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क इटसेल्फ। ये कोई समझाता नहीं है। मैं कल किसी आदमी को, यहाँ बैठे साहब है, इनको बोलूं कि मैं भैया आपको 1 लीटर पानी देता हूँ, 1 केजी हरा चारा देता हूँ, 1 केजी फॉडर देता हूँ और बोलता हूं कि पूना की एमसीएल लैबोरेटरी पूरी खुले करके देता हूं, आप अंदर चले जाइएगा, 2 घंटा लीजिएगा, 2 दिन लीजिएगा, 2 हफ्ता लीजिएगा। जब बाहर आएंगे तो साथ में आते वक्त 1 लीटर दूध, 1 लीटर गोमूत्र और 1 केजी डंग लेके आइएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? तो हमने इसके लिए इस डंग का पूरा विश्लेषण किया कि गोबर में है क्या चीज। गोबर में दूसरा कुछ है नहीं, जो सड़ा हुआ है, जो चबाया गया नहीं है गऊ से, उसका जो बचा हुआ खाद है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उसके डंग में होता है। फिर मान लो एक गऊ, जब अंदर उसका इंटेक क्या है? उसका इंटेक है पानी, उसका इंटेक है हरा चारा और उसका और भी साथ में सूखा चारा जिसको हम लोग कड़वा बोलते हैं। बाहर क्या देती है? दूध देती है, यूरिन देती है और डंग देती है। ये हम लोगों को नहीं जमता, फिर गौ को कैसे जम सकता है? इसके लिए हम लोगों ने एक गौ के पूरे डाइजेशन सिस्टम का अभ्यास किया। उसमें मालूम पड़ गया कि इस पूरी यात्रा में एक हरे चारे से लेके डंग तक या दूध तक या यूरिन तक, यह सब पूरा सिस्टम चलता है। ये सिस्टम कौन चलाता है? गौ खुद नहीं चलाती। गौ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और जब हमने इन बैक्टीरियाज को काउंट किया, ये बैक्टीरियाज का काउंट आया 33 करोड़। और उस कारण कहा जाता है कि गौ को गौ माता। हम लोग बोलते हैं कि उसके पेट में 33 करोड़ भगवान है। एक यहाँ का गणपति की बड़ी आइडल रहेगी ना, वो भी हम नहीं बिठा सकते। एक किसी भगवान को आप गौ की पेट में फिक्स नहीं करा सकते। 33 करोड़ की कहां बात रही? तो ये 33 करोड़ आर द बैक्टीरियाज व्हिच आर यूजफुल बैक्टीरियाज। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईरा, हम लोगों को जिस दिन से समझ आई है, वो हम लोगों ने हर एक बैक्टीरिया को देवता स्वरूप माना हुआ है और उस कारण गौ को हम लोग गौ माता बोलते हैं। भैंस माता नहीं बोलते, भैंस माता नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? फिर यहाँ आता है आपका A1 और A2 का मामला।
वो दूध जो गऊ का होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, भैंस का नहीं। चलो, कमिंग टू द सब्जेक्ट अगेन, 1 kg of dung produces 40 liters of biogas in 40 days। और ये गैस अगर मैं बनाता हूं तो मुझे कितना लगता है? मैंने बोला कि बायोगैस प्लांट कैन बी डिजाइन ऑन 2 बेसिक थिंग्स, वन इज द अवेलेबिलिटी, द अदर वन इज द रिक्वायरमेंट। मेरे पास क्या अवेलेबल है या मुझे क्या चाहिए। अब मेरी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है, 4 जन की फैमिली है, तो 4 जन की फैमिली के लिए अगर एक एलपीजी सिलेंडर मान लो महीने भर चलता है, इसका मतलब 14.2 किलो का सिलेंडर होता है एलपीजी का, और महीना भर चलता है, घड़ी भर के लिए मान के चलते हैं 14.2 की जगह पे 15 किलो, और 15 किलो अगर 30 दिन में लागत होती है, इसका मतलब दिन का मेरा एलपीजी का कंजम्पशन 500 ग्राम है, आधा किलो है। तो इसके लिए मुझे अगर गोबर गैस यूज करना है तो मुझे गोबर गैस लगेगा 1 मीटर क्यूब। अब मैंने आपको ये बताया 1 मीटर क्यूब माने 1000 लीटर। 1000 लीटर अगर मुझे गैस रोजाना बनानी है तो उसके लिए मुझे डंग कितना लगेगा? तो 1 केजी डंग से अगर 40 लीटर गैस बनती है तो मुझे दिन का रोजाना 25 किलो डंग लगेगा। अब 25 किलो डंग कहां से आएगा? तो इसका मतलब वेरी साफ है कि मेरे पास 2 बड़े जानवर और एक आधा छोटा बछड़ा होना है। तो मेरे पास 25 केजी डंग है। 25 केजी डंग से 1 मीटर क्यूब गैस मिल सकता है। 1 मीटर क्यूब गैस अगर मेरे घर में आ गया तो मेरा घर ईंधन में स्वयं पूर्ण हुआ। मोदी जी क्या बात करेंगे? मोदी जी बोलते हैं आप सब्सिडी छोड़ो, मैं बोला गैस कनेक्शन भी छोड़ो। आप यहाँ पे आए क्यों? वैल्यू एडिशन के लिए आए हो ना। ये क्या लिखा है यहाँ? स्मार्ट मैनेजमेंट। इसको हम लोग को काऊ को स्मार्ट नहीं करना है, और काऊ को कैसे स्मार्ट कराओगे? तो उसको स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने को स्मार्ट बनने की। और जिस दिन आप अपने घर में अपने हाथ से अपने खुद के खाने के लिए जिस दिन गैस बनाओ, आप स्मार्ट हो गए। बस सिंपल, उसके लिए यहाँ पे आए। चलो भाई एक बात के लिए मान के चलते हैं कि चलो कुकिंग फ्यूल का प्रॉब्लम खत्म हो गया, हमने एक जनरेटर का गैस बनवाया और घर का मामला खत्म हो गया। ये बिजली कहां से आएगी? तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास गोबर आपके कैटल फार्म में 3-4 चीजें होती है। एक मड पंप होता है, आपका चाफ कटर होता है, एक पानी का पंप होता है, मिल मिला के 4 या 5 HP का इंजन आपके पास कुल मिला के होता है। तो अगर आपके पास एक 5 kVA का कोई भी डीजल इंजन भी लगे तो ये डीजल इंजन ड्यूअल फ्यूल करा के आप इसको चला सकते हैं बायोगैस के ऊपर। 80-20 मॉडल ऐसा उसको बोलते हैं। 10% पे यूज करा के डीजल पे पहला डीजल जनरेटर चलवाओ, उसके बाद में डीजल का जो कॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करा के आहिस्ता आहिस्ता बायोगैस का कॉक ऑन करो। अब बीच का सब पूरा टाइम बायोगैस पे उसको चलाओ, और जब बंद करने की नौबत आई तो उस टाइम में बायोगैस का कॉक आहिस्ता आहिस्ता बंद करके डीजल का कॉक चालू करो, ताकि दूसरे दिन वो इंजन डीजल पे ही चालू होना है। उसका नाम डीजल इंजन है, बायोगैस इंजन नहीं है। तो डीजल इंजन है तो डीजल पे ही चलने हैं। लेकिन अगर अपने को डीजल बनाना है, बचाना है, तो उस कारण ये बीच का 80% डीजल अपने का बच सकता है। अगर 5 kVA का इंजन मान के चलो कि 1 घंटा चलाना है और उसको अगर 2 या 3 लीटर डीजल लगता है, तो ये 2 या 3 लीटर डीजल, मान लो 2.5 लीटर डीजल लग रहा है, तो 2.5 लीटर डीजल में आप तकरीबन 1.5 से 1.25 लीटर की डीजल की मात्रा रोजाना बचा सकते हो। आज की तारीख में कहना बहुत सिंपल है कि अगर डीजल में हम लोग पेट्रोल पंप से लाकर लेके आते हैं, 200 का 2 बैरल भर के लेके आते हैं, कब तक भर कर लेके आओगे? जब तक पेट्रोल पंप पे कोई डीजल बेच रहा है। ये डीजल पेट्रोल पंप पे कब तक आएगा? जब तक सरकार इंपोर्ट कर रही है। अब सरकार कब तक इंपोर्ट करेगी? जब तक अरब कंट्रीज इसको प्रोड्यूस करेंगे, और अरब कंट्रीज कब तक उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे? जब तक नीचे डीजल है। And what next? अगर कल जाके नीचे से डीजल आना बंद हो गया, जिसको काला तेल कहते हैं, कच्चा क्रूड ऑयल कहते हैं, ये क्रूड ऑयल कल नीचे से आना बंद हुआ तो क्या नौबत आ सकती है? काम मैं पलटन से यहाँ तक आओ और आप भी कहीं जहां से आए हो यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? ये नौबत है, ये कोई बोल नहीं रहा है। मैं आपके सामने उसी के लिए खड़ा हूं। आपको कोई मतलब ऐसा चीज बोल के मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँ। एक नाइजीरिया में मेरा दोस्त है कि जो ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी में काम करता है,
1980 में एक ऑयल वेल से अगर 100 लीटर बैरल रोजाना क्रूड ऑयल मिलता था तो उसमें 90% ऑयल अच्छा था और 10% स्लज हुआ करती थी, काली चिकनी मिट्टी आती है। 2000 में ये मात्रा ऐसी हुई है कि जहां तक वहां 90 और 10 का रेशो अब 80-20 में बदल चुका था। और 2010 उसके बाद 10 साल के बाद में ही आज 70-30 मामला चल रहा है। उसके बाद में भी आज 6 साल और हो गए, तो अब तो मामला 70 से नीचे घटेगा कि ऊपर आएगा? नीचे 60-40 हो जाएगा। और 60-40 होने के बाद और भी तकलीफ होगी। भारत सरकार की किसी अरब या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारे सब लोगों की गाड़ी भी नॉर्मली रिजर्व के आसपास ही चलती है। अमेरिका में 240 दिन का स्टॉक रहता है एनर्जी का। 240 दिन अगर डीजल नहीं मिला तो उनको तकलीफ नहीं आएगी। अपनी नौबत, हम लोग किसी दोस्त को गाड़ी देते हैं ना तो चाबी देते हैं, लेकिन बोलते हैं अरे लेकिन पेट्रोल डाल दो, नहीं तो पेट्रोल बहुत तक जाएगी। इतना बोलते हैं। ये अपनी है, अपने पास कोई एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। और ऐसी कल जाके दिन में सच में सिचुएशन आती है तो भाइयों आप लोग सब पूरे देश को कह सको कि हम लोग हैं उसका आंसर, क्योंकि हम लोग चलाते हैं गौशाला, हमारे पास है गोबर, इसी गोबर से हम लोग गोबर गैस बनाते हैं। ये गोबर गैस में 60% मीथेन होता है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 2% मॉइस्चर होता है, मैंने लिख दिया है उसमें। और कुछ पीपीएम में पॉइजनस गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S और NH3। एक सिंपल बात है, ये तीनों गैसेस अगर आपको निकालने हैं, आप एक पीवीसी का पाइप ले लीजिएगा 6 इंच डायमीटर का, 10 मीटर हाइट का, ऊपर नीचे उसको एंड कैप लगा के बंद करिएगा नीचे से। और गांव में जहां पे भी एक कोई टर्निंग का वर्कशॉप रहे, जहां पे टर्निंग का लेस लगता है और लोहे के ऊपर कुछ काम चलता है, तो उसके ऊपर से जो टर्निंग वेस्ट निकलता है, वो निकला हुआ जो वेस्ट है, जो मुश्किल से 15 रुपया 16 रुपया किलो मिलता है, ऐसा 2 या 3 किलो वेस्ट उस पाइप में डाल दीजिएगा। नीचे से रॉ बायोगैस अंदर चला जाएगा, ऊपर से बाहर आएगा। अब उसमें एक मात्रा में भी H2S, SO2 और NH3 नहीं रहेंगे। मैंने जब ये संशोधन किया 2007 में, किसी ने मुझे बोला कि आप इसका पेटेंट ले लो। मैंने इसका पेटेंट लिया नहीं है, कॉपी करने के लिए आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि ये जरूरी लगेगा। अब जाके आप बायोगैस इस तरफ से इसको साफ करते हो, साफ सुथरा करते हो, आप जाके इसको ट्रैक्टर की ट्यूब में भरा सकते हो और किसी को बेच भी सकते हो। आज तक बायोगैस यहां से वहां ट्रांसफर करना एक थोड़ा पेचीदा मामला था। लोग बोलते थे नहीं, रबर की ट्यूब में बायोगैस नहीं भरा जा सकता क्योंकि उसके अंदर H2S होता है। ये H2S वो रबर को खा जाता है और छेद पड़ते हैं और ट्यूब फट जाती है। अब ट्यूब फटेगी नहीं क्योंकि आपने H2S को हटा दिया है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूं। कल जाके मैं अगर अपनी पीठ पे, जैसे आप लोग हेवरसैक लेके चलते हो, वैसे अगर 2 ट्यूब लेके चलूं 1 मीटर क्यूब की, एक इनको दे दूं एक इनको दे दूं और बोलूं कि आपको एलपीजी का जितना पैसा लगता है बस उससे 2 रुपया कम दे दो, लेकिन दे दो। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मैं खुद ईंधन में स्वयं पूर्ण हो जाऊं, किसी और को भी स्वयं पूर्ण करूं, यह अच्छा हो सकता है। उसके आगे जाके कल अगर आप ये बायोगैस प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड भी हटा दे तो अब बचा क्या? तो 100% बचा, जिसका नाम है मीथेन। और मीथेन इज द ओनली मेंबर ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में दूसरा कुछ नहीं। खुद का पंप डालो, खुद का पंप डालो, बेचो। आज की तारीख में हमारे पूना में 2 व्हीलर्स को भी वो किट आ गया, CNG किट, कुछ मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास है। 2-2 kg के 2 छोटे सिलेंडर्स है, उसमें 2-2 किलो मतलब 4 किलो भरो। अब जाके तकरीबन 60 किलोमीटर पर kg चल सकता है। 240 मतलब पूना से निकलो तो कोल्हापुर तक आराम से जाओ। कितने रुपया में? 160 रुपये, 40 रुपए kg से बेचा जाता है। आप भी बेच सकते हो, पंप डाल सकते हो, पंप डाल सकते हो। और यहां तक हमारी बात चली थी कि ये 100% अगर हम लोग नहीं बना पावे, क्योंकि हमारे पास में 60% मीथेन होता है और 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट घट करते हमको तकलीफ आती है।
तो सरकार ने अब यहां तक अपने को परमिशन दी है कि कल जाके कोई गौशाला वाला अगर सीएनजी बायो सीएनजी प्लांट डाले तो उसमें 90% अगर मीथेन हो और 10% कार्बन डाइऑक्साइड हो तो चलेगा। मेरे पास जी है नितिन गडकरी जी। अब कोई दिक्कत नहीं, खुद का प्लांट डाल सकते हो। अब प्लांट डालना है तो कौन से साइज का डालोगे, आपके पास है क्या और आप करोगे क्या। लास्ट पन्ने पे आता हूं, फिर मुश्किल से 5 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। आप कर क्या सकते हो आपकी गौशाला में, आप यूरिन एक्सट्रैक्ट बनाते हो। यूरिन एक्सट्रैक्ट के लिए अगर नॉर्मल बायोगैस भी आप बनाओ और उसके ऊपर आप यूरिन हीट करो, कंडेंस करो और उसका गोमूत्र अर्क बनाओ। इसके लिए आप फ्यूल यूज करते हो, लकड़ी जलाते हो, कहीं जाके कोई केरोसिन लेके आता है, कहीं एलपीजी लगवाते हो। गोबर की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? This will be the biggest tool for your value addition. Gobar is the biggest tool for your value addition. You can prepare your own fuel. अरब लोग बनाते नहीं है, नीचे से निकालते हैं, बनाते नहीं है। लेकिन आप वैसे लोग हो सकते हो जो खुद बनाते हैं, आप खवा बना सकते हो। आपके भाई साहब आपने बताया था कि दूध वहां से यहाँ लाने तक बहुत तकलीफ थी, क्योंकि सही मात्रा में लोग का प्रॉब्लम था। फिर हमने हफ्ते में एक बार जाते थे, पूरा लेके आते थे 28 तक उसको स्टोर भी कराते थे। अगर वही दूध का वहीं पे खवा बनता था तो 15 किलो के एक डिब्बे में से आराम से आता था, कभी भी लेके आओ, कोई टेंशन नहीं। वैल्यू एडिशन हो जाता था। कितने रेट से बेचोगे और खवा कितने रेट से बेचोगे। आप घी बनाओ, घी अगर बना रहे हो तो घी के लिए तो स्लो बर्निंग लगता है। जितनी धीमी आंच पे उसको पकाओ उतना घी अच्छा निकल आता है। तो उसके लिए तो धीमी आंच चाहिए, और बायोगैस की धीमी आंच, सबसे बड़ी अच्छी धीमी आंच बायोगैस देती है। कई महिलाएं तकरार करती हैं कि बायोगैस पे खाना बनाने के लिए टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बायोगैस के साथ में बायोगैस में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है, एक है मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। जो मीथेन जलने की चेष्टा करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बुझाने की चेष्टा करता है। तो मुश्किल से 20% मीथेन जल पा सकता है, और उस कारण उसकी आंच कम हो जाती है। ये आंच कम हुई तो कम आंच आपके घी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप डीजल जनरेटर में इसको यूज करा सकते हैं, डीजल बचा सकते हो। आप सीएनजी किट लगाओगे गाड़ी को अपने, तो आप खुद के लिए ईंधन बना पाओ। अब आप खुद एक पंप ओनर हो गए। मुझे आश्चर्य है, पूरे देश में आज की तारीख में 21 करोड़ कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीलर सब मिला के 21 करोड़, और उनको कैटर करने के लिए अपने देश में सिर्फ 53,499 इतने ही पेट्रोल पंप है। 1-2 पेट्रोल पंप भी गिर गया ना तो अपनी बहुत बेकार हालत होती है, दौड़ धूप होती है। कल जाके अपना खुद का ईंधन बनाने की सोच सकते हो। मैं कल बनाऊं या बनाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सोच सकते हो। जहां तक आपकी गौशाला जब बढ़ती है वो टाइम में ही हो सकता है। आप मेडिसिन वो यूरिन एक्सट्रैक्ट का जो बनाते हो उसमें एक लो फ्लेम आएगी, स्लो बर्निंग होगा और एनर्जी मिला सकते हो आप। अब ये जो बायोगैस आप बना पाओ तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये 3 मात्रा में हो सकता है। एक इंडिविजुअल बायोगैस हो सकता है, एक सोसाइटल बायोगैस हो सकता है और एक इंडस्ट्रियल हो सकता है। इंडिविजुअल उसके लिए कि मेरे फैमिली के लिए। सोसाइटल कहाँ हो सकता है कि एक गांव में मैं बीच में एक बड़ी मात्रा में बड़ा गोबर गैस बनाऊं और उसी से पूरे देहात में उसके पाइप कनेक्शन दे दूं। हमने यहाँ पे मुलसी तहसील में, पुणे जिले के मुलसी तहसील में 2 गाँव में ऐसा किया है। अच्छा खासा चल, कोई दिक्कत नहीं। और इंडस्ट्रियल होता है जब आप बायोगैस दिन में 80 मीटर क्यूब या 80,000 लीटर पर डे प्रोड्यूस करने जाओ, तो आप सीएनजी पंप की सोचते हो या आप एलपीजी के सामने उसको सोच सकते हो। रिफाइन किया हुआ बायोगैस आप सिलेंडर में भर सकते हो और ऐसे सिलेंडर्स आप बेच सकते हो जैसे कि आपके घर में आज की तारीख में एलपीजी आता है कई होटलियर से। मुझे किसी ने पूछा कि ऐसा एलपीजी कौन लेगा। आपको मालूम नहीं है, शायद पूरे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। ये 125 करोड़ लोग अगर एक फैमिली में 5 लोग ऐसा पकड़े तो तकरीबन 25 करोड़ तक फैमिली आ सकती है। अगर 25 करोड़ फैमिली है, हर को आधा किलो गैस रोज लगता है, तो इस देश में केवल कुकिंग के लिए, घरेलू कुकिंग के लिए रोजाना 12.5 करोड़
crore kgs एलपीजी लगने वाला है। इसके मिनिमम 10 गुना गैस लगता है होटल इंडस्ट्री को और उसके 100 गुना गैस लगता है इंडस्ट्री को। कितने बायोगैस प्लांट बनाओ पाओगे आप? आपके पास जितना गोबर है उससे तो बना पाओ, जितना बनाओगे उसका पूरा गैस बिकेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कल मैं भाई साहब आपके दरवाजे में कल आऊं और हाथ में एक थैला में सिलेंडर लेके आऊं और पूछूं आपको कि मैं आपके लिए कुकिंग फ्यूल लाया हूं, दूं के आगे घर चला जाऊं, तो आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे कि नहीं खोलोगे? और बाजार में अगर जो चीज आपको मान लो 55 रुपए में मिल रही है और वही चीज मैं आपको 50 में दे रहा हूँ, वो भी आपके दरवाजे पे आके डिलीवरी देके, तो आप मुझे अंदर लोगे कि नहीं लोगे? सिंपल बात है। सो देयर इज नो एनी, ये धंधे में आपको कोई टाइप की, दिस इज अ मोनोपोली बिजनेस। जैसे हमारे महाराष्ट्र में चितले हैं कि जो बाकरवड़ी बनाते हैं, उनका दूध का कारोबार है, मोनोपोली बिजनेस। इतना अच्छा धंधा चलता है, उनको कोई एडवर्टाइज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, इतना अच्छा धंधा चलता है। वैसा ये मोनोपोली बिजनेस है। आपके गौशाला के सामने अगर कोई किसी और की भी गौशाला हो और दोनों जन अगर गोबर गैस बना रहे हो, दोनों जन रिफाइन कर रहे हो, दोनों सिलेंडर में भर रहे हो, तो दोनों को गिराइयों की कोई कमती नहीं रहेगी। दूध में शायद हो सकता है, दूध में हो सकता है, लेकिन गैस में नहीं होगा। नीचे में मैंने बायोगैस प्लांट के साइजेस दिए हुए हैं, 2 से 3 घनमीटर, 5 से 7। आपके पास एनिमल कितने हैं, फिर उस हिसाब से आपके पास टन कितना आएगा, उससे गैस कितनी बनेगी, उससे एलपीजी इक्विवेलेंसी कितनी आएगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी एलपीजी के सामने। फिर ऐसा प्लांट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए कॉस्ट क्या आएगी, और एक सिंपल पेबैक जिसको बोलते हैं कि द होल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डेली इनकम, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। आप ये पूरा शांति से देखिएगा, कहीं पर भी 24 महीने से ऊपर बायोगैस प्लांट का सिंपल पेबैक नहीं है। और यहाँ पे कोई अगर एमबीए फाइनेंस बैठा हो तो वो मुझे आंसर दे कि इफ एनी गैजेट विच कैन बी रीपेड इन 24 months विदाउट कंसिडरिंग एनी सब्सिडीज एंड द इंटरेस्ट और एनी अदर पैरामीटर्स, it is advisable or not? Is it advisable? 100%. Fine. Thank you. So no need to promote biogas. If you people still think you want biogas, we can help you if you want. मेरा नंबर मैं आपको दूंगा। जिनको मराठी आता है तो I'm having one small book with me which costs only 50 rupees. If you want, you can purchase that book. In that everything has been written. No need to ask any questions. But even after, ये अगर इनका सेशन खत्म होता है, मेरे बाद में कोई बोलेगा और उसके बाद में शायद सेशन खत्म होगा। सेशन खत्म होने के बाद अपने को बहुत टाइम है। मैं फलटन 9 साढ़े 9 तक बजे पहुंच भी गया तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं और 1 घंटा हम लोग रास्ते पे खड़े रहेंगे ताकि योगी साहब अपने को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम एक दूसरे को ना डिस्टर्ब करते हुए, अगर आपके पास कुछ भी शंकाएं हैं तो मैं आपका डाउट्स का क्लैरिफाई करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। दीपक कान्हेरे 937 DWPA के दीपक KANHERE कान्हेरे 937-2420 638